Hello students, let's begin our class. As you know that we were doing chapter 2 and many topics we have discussed in this chapter. So today we will end up this chapter with one more sum. So let's recall whatever we have done till now. First of all, we have understand the meaning of reconstitution of the firm. Reconstitution means change in the relationship of the partners. Business will continue, firm will continue, only the relationship between the partners will change. Then we have discussed about what are the 5 modes of the reconstitution, that is admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, amalgamation of the partnership firm. These we have discussed. Then in the change in profit sharing ratio, we have seen the sacrificing ratio, gaining ratio, treatment of goodwill, treatment of accumulated profit and losses. And then we have studied about the revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities has the two type of questions. That is, in the first kind of question हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और सेकंड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन में रीड करना पड़ेगा. सो टुडे वी विल डिस्कस टू मोर सम्स फॉर दिस. लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. Let's have a look on the question. Wait. Now you can see that Shankar, Babita and Vishal are partners in a firm in the ratio 5:4:2. So on the 1st April 2004, they decided to share profit in the ratio 4:3:2. So what are you watching here? That this is 5:4:3. This is your old ratio. Okay, this is your old ratio, and this is 4:3:2. This is your new ratio. Okay, this is your old ratio, this is your new ratio. Then general reserve was of 34,900 and loss on revaluation of assets and liabilities is 5,200. It was decided that adjustment should be made without altering the figures of assets and liabilities. This line matters. Without altering the figures of assets and liabilities means they want to pass an adjusting entry. आपको एग्जाम में यही ध्यान देना है कि सिंगल जर्नल एंट्री पूछी है तो आपको एडजस्टिंग करनी है. एडजस्टिंग के लिए क्या आपको बताया गया था? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग. क्या करते हैं इसमें? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओल्ड रेशो. देन हमें लिखना पड़ेगा न्यू रेशो. देन ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे तो हमारे को चेंज कैलकुलेट हो जाएगा. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और नेगेटिव आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है. तो हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है. लेट्स हैव अ लुक. This is your old ratio 5:4:3. This is your new ratio. Then what we have done, old minus new. आंसर इज पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो गया? सेक्रीफाइस. और यहाँ पर आप क्या देखोगे? इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका गेन हो रहा है. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करते हैं क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर को करते हैं डेबिट. तो एंट्री तो फिक्स है. दैट इज विशाल टू शंकर टू बबीता. लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर. विशाल टू शंकर टू बबीता. नाउ व्हाट मैटर्स? This amount matters. How we will get this amount? So let's have how we will calculate this amount. You have seen that 34,900 we have not distributed and 5,200 that this is a loss, so we will deduct this loss. Loss will be written in the bracket. Then 29,700. अब जो आपने ये रेशियो कैलकुलेट किया है 29,700 को 1/99 में आप शंकर का रेशियो निकाल लेंगे. देन आप बबीता का रेशो निकाल लेंगे. देन आप विशाल का रेशो निकाल लेंगे और एंट्री आप पास कर देंगे. सो इस तरीके से ये सम आपका होगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC are the partners in a firm sharing profit and losses in 2:1. So what do you understand with this? This is your old ratio. Now let's have a look. Balance sheet is given. Land, building, plant, stock, debtor, cash. Creditors, bills payable, outstanding expenses, general reserve and capitals of all three partners. Okay, now next what information is given? Goodwill of the firm is valued. तो ये न्यू गुडविल आपकी दे रखी है. इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. अगर गुडविल यहाँ बैलेंस शीट में दे रखी होती, अगर गुडविल यहाँ बैलेंस शीट में आपको मिलती तो आपको इसको ओल्ड रेशियो में करना था. लेकिन अब ये जो गुडविल आपको दी हुई है ये आपको यहाँ दी हुई है, तो आपको इसका वर्क क्या करना होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग.
अब लैंड की वैल्यू रीवैल्यू होके 1 लाख हुई है। अब आप आगे देखो कि लैंड की वैल्यू कितनी थी 85,000, तो अब कितनी हो गई है 1 लाख। तो यानी कि 15,000 से लैंड की वैल्यू क्या हो गई है, प्लस हो गई है। आगे देखिए, बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लैंड की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है। क्रेडिटर्स वर नॉट टू बी पेड, तो यानी कि ये भी आपके लिए एक तरह से फ़ायदा है कि आपको क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, आपको इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, यानी कि रिवैल्यूएशन नहीं करना है, ओनली इफेक्ट। तो आपका 15,000 का बेनिफिट यहाँ हुआ, 3,000 का बेनिफिट आपको क्रेडिटर को पे नहीं करने पर हुआ। और बिल्डिंग पर 6% डेप, तो वो आप बिल्डिंग वाला यहाँ पर लिख देंगे और इस तरीके से आपका लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 15,000 आपका लैंड में इंक्रीज़ हुआ, फिर क्रेडिटर को नहीं देना पड़ा 18 हुआ, फिर रिवैल्यूएशन बिल्डिंग में डिक्रीज़ हुआ 3,000, तो आपका रिवैल्यूएशन 15,000 आ गया, प्रॉफिट हुआ। अब आपकी गुडविल 60 दे रखी है, तो टोटल हो गया 75। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस और 75,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो ये आ रहा है। अब यहाँ आपने क्या देखा कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, तो एंट्री क्या बनेगी, ए बी क्रेडिट और सी गेन कर रहा है, तो सी टू ए टू बी, ये एडजस्टिंग एंट्री है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि वो गुड जनरल रिजर्व को तो कुछ नहीं बताया, तो नॉर्मल जो काम करते हैं वही करेंगे, तो कुछ नहीं बताया तो आप इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में। अब आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आप जनरल रिजर्व क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे, ए बी के क्रेडिट में और सी के डेबिट में। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसेस उतारे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमारी अभी एंट्री क्या बनी थी कि ए बी को क्रेडिट कर रहे हैं सी टू ए टू बी, तो ए बी क्रेडिट हो रहे हैं और यहाँ पे सी डेबिट हो रहा है। सारा टोटल करके इनके बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे। बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम बैलेंस शीट आएगी, ओनली यू हैव टू चेंज द कैपिटल बैलेंस, and in this manner you will complete. I hope that you will understand this sum and you